آپ کا میزبان شوکت مغل، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ وائس آف پاکستان اردو کی ایک نئی بیٹھک، آج سے میں اس کو نئے رنگ کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی عزت خان لالا، ملک نواز فقی، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ پروگرام، اس پروگرام کو ہم بیٹھک کی نما پہ لے کے جانا بہت ضروری، اس لیے سمجھا کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ ڈیلی پروگرام کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں، کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے ہمارے سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ، یہ پہلے جب ہوم منسٹر تھے تو دبنگ تھانوں میں چھاپے مارنا، غریب کے ساتھ زیادتی نہ ہونا، ان کا ایک نام تھا۔ اسی طرح شہریار افریدی نے بھی بڑے ماشاءاللہ کام کیے ہیں۔ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وزیر داخلہ صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ جناب کچھ ہمارے ایسے محکمے ہیں جو آپ کے انڈر ہیں، آپ ان پہ کڑی نظر رکھیں۔ وہاں پہ جو ٹاؤٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھانا آپ کا کام ہے۔ سی ڈی اے آپ کے انڈر ہے، وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے، آپ کا کام ہے اس پہ نظر رکھنا۔ بہت سی چیزیں ہیں، وہ چیزیں ملک صاحب اور اپنا عزت خان لالا آپ کو بتائیں گے۔ ان سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ وزیر داخلہ صاحب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو ماشاءاللہ قابل احترام آئے، وہ تو بس اس کو پکڑو اس کو پکڑو، ادھر کرو ادھر کرو، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ میں بڑی امید کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ سرفراز بگٹی صاحب جیسے بلوچستان میں آپ نے جو کام کیے ہیں، اسی طرح اسلام آباد میں بھی آپ ایک نام زندہ کریں گے۔ عزت خان لالا جناب، سب سے پہلے آپ یہ مجھے بتائیں، یہ جو اسلام آباد کے اندر یہ جو پلوں کے کام شام ہوئے ہیں، یہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے، یہ نئے پل تعمیرات ہوئے ہیں، کیا اس میں سی ڈی اے کا کتنا رول ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک نواز فقی صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور شوکت مغل صاحب آپ کی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے چینل کے شیشے پر میں سرفراز بگٹی صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، جو اللہ نے اس کو ایک بہت بڑا منصب دیا۔ سردار یہ جو ہمارا سرفراز بگٹی صاحب ہے، بہت عزت دار صوبے سے، بلوچستان سے، ایک نرا علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے بھی ہوم منسٹر رہا۔ اور وزیر داخلہ جو ہے نا، وزیر داخلہ یہ سیٹ ایسے ہے، یہ نظر آنا چاہیے، یہ پورا پاکستان کا ایڈمنسٹریشن کا سیٹ ہے، 16 وزارتیں اس کے انڈر آتی ہیں۔ یہ ایڈمنسٹریشن کا سیٹ ہے۔ اس کو بالکل جہاں پر اس کو نظر آ رہا ہے کہ تانے میں خرابی ہے، وہاں پر بھی اس کو ڈائریکٹ چاپا لگانا چاہیے۔ جہاں پر جناب جدھر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، وہاں پر بھی، اور ان لوگوں جو سویا ہوا پولیس افسران ہے، جو صرف عیاشی کرتے ہیں، جو صرف بڑے بڑے گاڑی سے، اس کو بھی الرٹ کرنا چاہیے۔ اور مزے کے بعد ہے کہ ہر وزیر داخلہ جب صحیح و برابر ہو تو وہ رات کو 2-3 بجے تک 8-10 میٹنگ اور مختلف، یعنی تب وہ رات کو سوتے جو باخبر ہو جائے۔ ایک تو میں آپ کے وساست سے، شیشے کے وساست سے، ان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا سی ڈی اے کا 15,000 ملازمین کا ایک کیس آپ کی تھرو گیا ہوا ہے، اور وہ اسمبلی میں پڑا ہے، اور اس میں کچھ نہیں آپ کا ایک سٹیمپ لگنا ہے۔ جو پچھلا حکومت نے 16 سال تو اپنے جیب اور کام کیا، لیکن وہ سپریم کورٹ سے تفصیل آپ کو پتہ ہے، سی ڈی اے کا مزدوروں کا پلاٹ ہے، اگر وہ کر دے تو تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا، اور ایک عزت آپ کو یاد رہا۔ شہریار افریدی نے جب وہاں اس نے چند مہینے کام کیا، ہمارے اس ملک کا بدقسمتی ہے کہ ایماندار آدمی کا، صحیح آدمی کو لوگ چلنے نہیں دیتے۔ اس نے بڑا بڑا یہ روڈوں کے اوپر جو بڑے بڑے لوگوں نے قبضے ڈالے، جو لوگوں نے کبھی زمین بازیاب کیا، سب کچھ کیا، بدقسمتی سے وہ سیٹ پر ایک ایسا آدمی کو دیا جو ایک کلرک کے سوا اور کچھ نہیں تھا، کوئی بریگیڈیئر صاحب تھا۔ تو سرفراز بگٹی صاحب کو اپنا قومیت پر فخر ہونا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا قوم کا سردار ہے وہ، اور بلوچستان کا ایک بہت بڑا دیانتدار ایماندار آدمی ہے، اور سیٹ بھی اس کے پاس بہت بڑا ہے۔ تو میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جہاں اپنی سی ڈی اے کا دیکھے، ایک تو جو ہے نا ہمیں جو اس نے تحفے ہی دیا، رانا ثناء اللہ نے ہمیں ایسے تحفے دیا کہ 185 کے لگ بھگ صرف ڈیپوٹیشن والا اپنا عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، نہ مرد دیکھے نہ عورت دیکھے نہ چپڑاسی دیکھے، ادھر بمبار سر عزت خان لالا،
बस बात वही है ना, ये उनको वापस कर हम दें। कहते नहीं हैं हम काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो वज़ीर दाखिला के लायक तो खैर कोई बंदा उनको पसंद नहीं करता था। इस बंदे का नाम है सरफराज बुख्ती साहब, जिनका नाम है ख़ानदान में आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मलिक नवाज साहब, आप तो माशाल्लाह अपने चैनल पे पुलों के काम प्रोग्राम कर 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 के तो आपने तो तबाही निकाल दी है। सर ये जो मैंने आज प्रोग्राम देखा है, ये नज़ारा, ये रावल डैम रावल चौक वाले पुल का, सर इसमें सीडीए के लोग, ऐसे नखटू लोग, ऐसे नकम्मे लोग किधर से किधर डेपुटेशन पे भी लाकर इन्होंने सीडीए का बेड़ा गर्क किया है। आज सर यकीन करो ये अरबों रुपये क्यों हमारे गर्क हुए हैं सर, ये कौन पूछेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल भाई, लाला इज़्ज़त खान ने भी बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। मुगल साहब बदकिस्मती दे नाल हो दुनिया अगे जाती है, असी पिछे जाते हैं जी, ऐसे ही है, असी अंग्रेज़ नूं गालां भी कढ़दे हैं, ऐसे ही है असी उन्होंने यहूदी भी कहने हैं, जी बिल्कुल, हथ भी उत्थे ही फैलाने हैं, फैलाने हैं बिल्कुल, है कि नहीं? ऐसे ही है। बिल्कुल सर दूसरी गुजारिश है वे 200 साल दे पुल बने हुए जेड़े अंग्रेज़ दौर दे लैंड दी पटड़ियां बिछाइयां ऐसे ही है। वो ते खराब नहीं होए। नहीं खराब भाई, नहीं ਉਹ खराब ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਪੁੱਲ ਏ ਬਾਰਾਕਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਟਰੰਗ ਹੋਈ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ मलिक साहब इस पैसे ना साहब कौन ਸਾਰ देसी ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ जी जी ਸਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਵਲ ਚੌਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਨੇਟਰ ਪੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈ 26 ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ 26 ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਾਕਊ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮਰੇ ਨੂੰ। ਜੀ, ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਵਾਹ ਵਾਲਾ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ E11 ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ ਬਾਰ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਲੱਗੀ ਪਈ जी वो के एक मतलब मोनोग्राम होना चाहिए है ना, वो कोई नहीं है। सर मैंने सवेरे उस दिन मैं सुता मैं तो कॉल आई कि सोकी साहब है E11 वाला पुल गिर गया। मैं हूँ जी पहुँचा, खुदा दी कसम खा के कहना कि एक आम मजदूर भी पता है गिर जासी। वो भाई सुक्की दगुड़दी उत्ते जनाब इन पर कारपेटेड करने नूं तुसां तक्या प्रोग्राम E11 वाला। यार हर काम का एक तरीका, ਉਹਦਾ एक मटीरियल है, अगर सीमेंट की जरूरत ना होंदी ਤੇ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਿਪੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਕਾਲਮ ਭਰਦੇ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा मैं उसे बना रहा हूँ, उसे एक इंजीनियर साहब आ गए, कहना जी आप किस हैसियत से बना रहे हैं? मैं कहा जी मेरी तो ये हैसियत है, आप बताएं आप कौन है? कहता है जी मैं साइड इंजीनियर हूँ। मैं कहा कितने अरसे से कर रहे हैं? कहता है मैं इधर हो NLC के साथ होता हूँ। मैं सवाल कोई कर रहा हूँ, जो उन्होंने काट पढ़ना भी कोई नहीं आया उस इंजीनियर साहब ने। मैं कहा जी ये क्या हो रहा है? वो मेरा मोबाइल खसना शुरू करता, कैमरा खसना शुरू कर देता। तुसी मैनू ये गल दसो कि ये मुल्क तरक्की कर सकता है? सर जी गल ए वे इत्थे बहुत बड़ा एक इसनूं मैं केड़ा लफज देवां कि जब तक मरोड़ा, लेकिन मरोड़ा ये होंदा है किसी दा DG है, किसी दा जनाब सैकटरी है, वो जनाब मन उत्ते उत्ते खेड होवे नहीं। बस बस लेकिन ये मुल्क भाई साहब 6 अरब रुपया उत्थे लगा बाराकऊ वाले पुल ते, उत्थे मोटरसाइकिल हुण मजे नहीं, उत्थे गल एक होर हो गई, 6-8 बंदे ट्रैफिक वाले और पुलिस वाले नहीं उत्थे ड्यूटियां लग गई, इधरों जाने भी उधरों आने भी, जेड़ा उत्थे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਰੋਕ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਦੂਆ ਉਹ ਮਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ 6 ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਚ 6 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 12 ਤੇ 12 12 ਤੇ 36 35 36 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾ ਛੋੜਿਆ। ऐसे ही है, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੈ ਪਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ अल्लाह ही अल्लाह ही हाफ़िज़, हाफ़िज़। अल्लाह ही हाफ़िज़। इज़्ज़त खान लाला जी सर, आप CDA के बहुत करीब नहीं, CDA के अंदर रहे हैं, CDA के हवाले से आप बहुत कुछ जानते हैं। पिछले दौर में वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब थे, मैंने तो ज़िंदगी में कभी CDA के अंदर इंटरफेयर किए ही नहीं है, क्योंकि हमने 2 नंबर काम करने नहीं है, हमारा काम ही नहीं है, हम कभी ऐसा नहीं किया है। सर आप क्या समझते हैं ये CDA के लोग इन चीज़ों को जो अपना वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो प्लानिंग जिसकी करते हैं, ऐसे करप्ट शख्स को क्यों लेके आते हैं जिसकी प्लानिंग में हमेशा नुकसान हो सर? मेरे भाई ये प्लानिंग किसने की? रावल डैम वाली
अब ये तो मैं पता करूंगा, ये तो मुझे नहीं, ज़ाहिर है प्लानिंग मेंबर एक जिम्मेदार होते हैं ना। प्लानिंग मेंबर कौन था? लेकिन इस बल्क में एक और मुसीबत है, नाम सिर्फ प्लानिंग मेंबर का है, हाँ उससे काम लेना था नीपा बासी, ड्रग माफिया। फिर आप मुझसे खुल के, उसको प्लानिंग में जरा क्या नाम है, उस पर कंट्रोल था उसका डॉक्टर फजल चौधरी का, हाँ क्योंकि ये मुस्लिम लीग का उसका हुकूमत था। जिस हुकूमत आए और जिसके डायरेक्टर था मौलाना फजल रहमान, जिसने आती हुई और फिर जब चला गया तो क्या किया, वो IMF से जो कर्जा लेके मुझे और आपको किस मुसीबत में छोड़ दिया, और 1-1 अरब रुपए उन्होंने लिया इलेक्शन के लिए। तो मेरे भाई, हमारे डायरेक्टरों को, हमारा मेंबरों को कान मरोड़ने वाला अनीप अब्बासी और डॉक्टर फजल चौधरी बैठे थे। जैसे उन्होंने चलाए उसी तरह वो चलते रहे, ताकि कल हम इसमें 4 पैसे कमाए और इलेक्शन में खर्चा करें। आपको मजे की बात एक और मैं बताता हूँ, मुझे अगर दे दे, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं लानत भेजता हूँ उस अफसर के ऊपर जो ग्रेड 20 और 21 का अफसर हो, और इसके पास कोई प्राइवेट आदमी आए, क्या MNA है ना, क्या करेगा वो? नहीं। क्या मैं MNA होगा ना? नहीं, आप ये मुझे बताएं, अगर आप किसी जगह पे अफसर लगे हैं, आपको MNA अगर बोले कि इसको अपना बंदे को फायर मार दो, तो आप मार दोगे? क्यों मार देंगे? मैं सुपरवाइजर था और मैं बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह मुझे देख रहे, लेकिन पूरा CDA वाला मेरा मुखालिफिन से भी पूछो, मैंने कभी जिंदगी में कोई अफसर किसी की जरूरत नहीं हुआ चाहे और मुझसे ऐसे गलत कई तो लोग ये आए। अफसर, इन अफसरों ने क्यों ये काम पता है किया क्या, है? हमारा पास एक इनूसी का इख्तियार होता, ये जो बेसमेंट का मकान के इनूसी देते, इसका 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपए थे। माँ का लानत में उसके ऊपर भेजता हूँ, किसी का नहीं माने रिपोर्ट भेजे। सुनो, ये जो संटोरस बन रहे हैं ना, संटोरस, इसके ऊपर केस करके खुदा की कसम इसका मैंने नहीं माने। मैं कहा ये लैंड बर्दाश्त नहीं करेगा। जब संटोरस बन रहा था, ये उस वक्त हमें लाखों रुपए दे रहे थे, मुझे डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर मिन्नत कर रहे थे। मैंने कहा भाई इसका जो 2000 कमरे बनेगा, ये इस पैप का कैपेसिटी नहीं है, ये कैसे बर्दाश्त करेगा, इसके लिए नवा लैंड डालो। ठीक है, ये मेरा रिपोर्ट पे मौजूद है। मैं अगला बात बता रहा हूँ, इतना खूबसूरत पॉइंट आपको बताऊं कि वो जो वजीर दाखिला के आंखों के सामने रेडियो पाकिस्तान से आगे बरेमाम की तरफ एक रोड जाता है, बिल्कुल जाता है, इधर फॉरेन ऑफिस, उधर सेक्रेटेरिएट, उधर सुप्रीम कोर्ट, उधर बरेमाम, उधर वजीर आजम घर, उधर दरमियान इधर तमाम मुल्कों का एम्बेसी। बिल्कुल एक सड़क वहां बने, 1 महीना पहले हम देखते रहे, रातों रात कड़े लग गए, टक्का टुक्का सड़क बन, दीवार बन यार गया। वाकई वो बड़ा दीवार बन गया। इसका इंक्वायरी होना चाहिए कि गरीब मुल्क का ये पैसा कौन है, ये लोग आपने प्लानिंग का बात यार किया बहुत बड़ा कि जनाब तुम लोगों ने दीवार बनाए, अब गिरा और अगला दिन जनाब किसी अफसर ने हुक्म दिया कि इसको गिराओ। अब वो टोटल लाखों करोड़ों रुपए उस पर जाया हो गया, और ये नलसी कंपनी आए, एनएलसी कंपनी का पुल उधर गिर गया नाकिस, एनएलसी कंपनी का पुल इधर गिर गया नाकिस। रिपोर्ट लिखो ना, एनएलसी कंपनी है ना, क्या है कोई आपका। लेकिन मेरे भाई खान लाला, कंपनियां भी नहीं की अपनी हैं, सारे मामलात हैं। आप बहुत मचोर बंदे हैं। हम जो प्रोग्राम करते हैं, हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि लोगों को ये बातों की समझ आए, लोग ये समझें। मैंने आपको 101 मरतबा ये कहा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो ज़रूर देखें, आपको कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। इज़्ज़त खान लाला राजा बाज़ार में 100 साल पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बिल्कुल बनी हुई हैं, अभी मौजूद हैं, अभी मौजूद हैं। वो वहाँ से अपना क्या नाम है इसका, कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा है, वो बिल्डिंगें आगे पीछे कहीं नहीं जा रही हैं। आपका ये इस्लामाबाद के अंदर ये जो पुल बने हुए हैं, जिस बात की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ कि इतना जल्दी ये नुकसान क्यों है, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? छोड़ दो मैसी रोड को, छोड़ दो सेंट्रोस को। नुकसान इसलिए हो रहा है, अच्छा ये सामने कुर्सी पड़े, कल से आप जाए राजा बाजार में और कुर्सी चेक करें, आपको 500 से लेके 5000 तक कुर्सी मिलेगा और 25000 तक भी मिलेगा। ठीक है, अब ये सरकार के खाते में ये बदकिस्मती को खुशकिस्मती को इस मुल्क में 50% एंड एबाव कमीशन है, बिल्कुल ओपन, दुनिया को पता है। ठीक है, आप मुझे बताएं, जिस पुल के लिए आप 21 अरब रुपए मंजूर करें, उसमें से तो जनाब 50 करोड़ जो है ना वो कमीशन हो जाते, बल्कि 50 पे इनको गुजारा नहीं होता है, 55 करोड़ ले लेते। क्या वो ठेकेदार पागल है जो बाकी लगाएगा? वो 45 करोड़ जब बचेगा उसमें से 25 करोड़ जेब में डालेगा, 20 करोड़ का काम होगा। तो गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान गरीब लोगों का टैक्स का पैसा जाएगा 1 अरब और मौके पर लगेगा 25 करोड़। यही रोना है, नहीं कमीशन है। तो क्या ठेकेदार जैसा भी काम होगा वो करेगा? सर मेरी गुजारिश है जी, मैं लाले निकाल कटना गया,
میں 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਾਵਲ ਟਾਊਨ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵਲ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਉਸੋਂ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਿੱਟਣ ਮੁਤਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਲਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ 5000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣੀ ਪਈ ਵੀ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਲਿੱਤੇ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟਡ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ? ਬਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ वो सारा मैं दिखाया है कि कुछ नामा नहीं जिस तरह बिचू नामा नहीं पानी पे निकलना है। इसका मतलब ये हुआ है कि ठेकेदार कंपनियां भी इनकी अपनी हैं, इनकी अपनी वो सार मेरी गुजारिश बाहर का कोई ठेकेदार काम नहीं करेगा। इज्जत खान लाला जो अब जो तो सीढ़ी कि अपना नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है, क्यों काम कर सकती है? असल बात आप जब ये करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा ख्याल भी, क्योंकि मेरा महकमा भी आप मुझे आप भी पहले कहते हैं मेरे भाई जो मर्जी कर ले, सब इंजीनियर से लेके मेंबर इंजीनियर तक और चेयरमैन तक सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए कि जिस चीज़ का एस्टीमेट बनते तो सब इंजीनियर बनाते, एडी साइन करते, डीडी करते, डायरेक्टर करते, डीजी करते, डिप्टी डीजी करते, मेंबर तक आते, फिर फाइनेंस वाला आते हैं, फिर उसको फंड मंजूर, फिर कौन बंदा कहते हैं मैं खबर नहीं हूँ। आखिर थी जब सस्पेंड करते तो किधर कोई सुपरवाइजर कर देते, कोई कवरसेर करते। और सुनो ये जो 55% लेते ये भी इसी तरह छोरों के कपड़े डांग इसी तरह जनाब तकसीम करते। इस पे मैं एक बात फाइनल कहता हूँ जी, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि गरीब आवाम ते टैक्स ला के पैसे खजाने नहीं दोए कि दुए पास उन्हें कर रहे हैं। ए पुल ना हिक भी कोई करामत नहीं, मैं कोई करामत नहीं। प्रोग्राम मेरा ख़त्म होने का बल्कि वक्त करीब है। इरशाद खान लाला आप पे मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक इदारे के अंदर से रिटायर हुए हैं। ये जो बंदे को डेपुटेशन पे लाया जाता है किसी और महकमे से दूसरे महकमे में, क्या समझते हैं कि एक बंदे को अगर कहते हैं कि एक झोंपड़े वाले को आप ले जाते हैं सरीना में तो वो सरीना को चला लेगा? प्यारे भाई आपने बड़े अच्छी बात किया। हर बंदा इस मुल्क में यारी दोस्ती और पैसा चलते। जिस इलाके का वजीर दाखिला ने राणा सनाउल्लाह ने यही कुछ किया, क्योंकि पाउडर का कारोबार उसने किया, बिल्कुल 100% जेल में गया था, लेकिन इस मुल्क का अदलिये पर कुर्बान जाओ। इस मुल्क के नहीं अदलिया अब कर रहे हैं, सुनो यार नहीं कर रहे, किधर कर रहे? वो किधर गया? वो जज मैं घर होता ना, मैंने खुद शराब पकड़ा शकील मेमन के पास, अगले दिन लिबार्ड्री ने कहा ये शाद है, मैं उसी दिन रिजाइन करता। जब आपके मुल्क में शराब को शाद बन जाते तो ये पुल भी फिर सोना बन जाते। सुनो जब ये बंदे लाए ये जनाब इन्होंने 5-5, 10-10 लाख रुपए दिया। मैं दावे से कहता हूँ, मेरे सामने कुरान पे हाथ रखते हैं, मैं भी रखता हूँ डेपुटेशन के। इसलिए कि यहाँ पर ये जो बातें आप कर रहे हैं कि इसमें पैसे, दूसरा इनमें प्लाट है I8 में उनको जनाब कनाल का प्लाट मिलते है और वो जनाब 10-12 करोड़ रुपए का प्लाट है। और इन्होंने कहा कि बार का 10 महीने और इधर का 6 महीने, और गरीब को मिले न मिले, अमीर को तो मिलेगा। ठीक है, और मजे और बस आए और उनका क्या जाते। भाई मुझे बताओ जब 185 वैकेंसी खाली था तो आपने अपने बंदों को प्रमोट क्यों नहीं किया? कल उसका तुम पेंशन पकड़ोगे। सुनो अपने बंदे का पेंशन है। पुराने जमाने में हमारे पठान लोग पराये लोगों के साथ शादी ब्याह बच्ची नहीं देते, कहते हैं वो मैच नहीं करते हमारा खानदान के साथ। तो जोड़ों में भी यही बैठते हैं ना फिर। ठीक है, लेकिन एक वाहिद महकमा है ये पेरे दरिया पराया पैसा है, इनकी जेब से 1 रुपए नहीं जाते, अयाशी करते। 6 महीने में किसने उनका टेस्ट इंटरव्यू लिया, किसने उसका डिग्री चार्ज किया, इसने कौन सा जुबान में डिग्री किया? आया ना, मुझे बताओ तुम्हारा मन और शाह उधर रेलवे से आया, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, सभी इंजीनियर भर्ती था उधर भी उसने वही नाम ले लिया, वही नाम आपने ले लिया, वही नाम ले लिया, वो रिटायर हो गया है। लेकिन बात से एक मैं जरूर कह दूँ, ऐसे लोगों को अगर सीनियर लोग लाते हैं उनको कम से कम ख्याल करना चाहिए कि ऐसे लोगों को मसलत मत करें कि जिन लोगों के पास तजर्बा नहीं है या कोई ऐसी इतनी अहलियत नहीं है। मलक नवाज साहब वज़ीर दाखिला साहब से ये दरख्वास्त है कि बाकी लोग तो हम भी बातें करेगा और वो भी बातें सुनेगा। आपको अल्लाह ने एक मकाम दिया और एक मनसब का मकाम दिया, क्योंकि 25 करोड़ में से आपको टॉप द क्रीम लोग, ईमानदार, दयानतदार, इज़्ज़तदार, गैरतमंद आप वज़ीर आज़म का टीम है। मज़ा तो तब है कि आप 3 महीने पूरा कर ले और 3 महीने में ऐसे काम करे जो 30 साल से भी ज़्यादा हो।
रहते हुए दुनिया तक लोग आपको याद नाम आपका करेगा। जिंदा रहे, ये डिपोटेशन वाला भी वापस करो, ये सीडीए के गरीबों को प्लाट भी दिलवाओ, और ये जो सीडीए में खराबी है इसको भी दुरुस्त करो, और ये पुलिस कम से कम इस्लामाबाद और रावलपिंडी लेवल पर तो दुरुस्त कर लो तो मजा आ जाएगा। सारे मुल्क में करें क्योंकि पूरा मुल्क का जी, वज़ीर क्या आज़म है। आखिरी आपका जनाब मैं मुल्क भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਪੁੱਲ ਹੋਣ ਨਾ ਸਰ 3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਰਕਊ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਠੱਠਾ ਕਿਉਂ ਹੈ हाँ क्यों टटा ਔਰ 35-40 ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾ ਛੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਯਾਰ 6 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਭਰਾਵੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੂਆ ਭਰਾਵੇ ਨੂਨ ਚ ਤਰੀਆ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ हाथी जड़ा ना मकड़ी ने तोड़ के निकल जाता इतने जाल और आवाम के लिए भी आखिर एक पैगाम है कि 3 दफा आपने मुंतखब किया, आपके लिए यही कीर बनाएगा। आइंदा रब्दा वास्ता अपना उठ पे डालने से न डालना है। वोट के हवाले से इस पे हम इस मौजू पे हम कल बात करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त दोनों मेहमानों ने, मलक साहब भी, इज़्ज़त खान लाला ने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं। मेरा एक आखिरी पैगाम है सरफराज बुख्ती साहब, आप एक नवाब हैं, आपका एक ख़ानदान है, आपका एक कबीला है, आपका एक नाम है। सबसे पहले आपने जितने लोग डिप्यूटेशन पे आए हुए हैं फिल फौर उनको अपने अपने महकमे में वापस भेजा जाए। इंक्वायरी सबसे पहले इंक्वायरी करें कि इन्होंने काम कौन कौन से किए हैं। आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी मौजूद हैं लोग जो डिप्यूटेशन पे आए हुए हैं, जिनके पास इतनी अहलियत भी नहीं है, जिन जिन ओहदों पे वो फायज़ है। ये सर आप, मुझे यकीन है और मुझे उम्मीद है कि आप इस पे, क्योंकि आप दबंग वज़ीर दाखिला हैं, तो इंशाल्लाह आप इस पे भी अपना गौर करेंगे। मलक नवाज साहब का कहना ये है कि ये जो हमारे अरबों रुपये ज़ाया हुए हैं ये पुलों पे, बहुत बड़ा सर आप एक दिन विज़िट तो करें, आप ये विज़िट करें, आप देखें, आपको लग पता जाएगा सर। मैं सॉरी फिर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਖਤੀ ਰੱਖ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਰਾਵਲ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ हाँ जी जी ਪਾਣੀ ਖੋਲਿਆ ਨੇ मैं मौजूद था, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ था मैं। ਸਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ यहाँ सही है। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੱਲੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਨਾਣੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ हाँ फैमिली नाल लैके वो तो शुगर तकने में ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ हाँ सही। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਪੈਨਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਟਰਪੈਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਹੋਣੇ लेकिन ਕੀ ਲੱਗੇ लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि वज़ीर दाखिला साहब इन चीज़ों पे नोटिस लेंगे। ये जो लोग, ये करप्शन, ये टाउट माफिया, अगर इन पे कंट्रोल किया जाए तो आप यकीन माने सब चीज़ों पे कंट्रोल हो जाएगा। तो सरफराज बुख्ती साहब, हमारी रिक्वेस्ट है कि ये काम बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर 2 ये जो नाके हैं सर, हमारी दरख्वास्त है आपके आगे, कुछ भी नहीं होता है, आपको भी पता है। ये नाके सर फिर फोर ख़त्म करें। ये इन्होंने वैसा पैदा बनाई हुई है, कोई फैमिली जा रही है बाइक पे, उसको रोक लिया है, गाड़ी को रोक लिया है आपने। ये दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, सबसे पहले ये काम आप ये जो है ये ख़त्म करें। और उसके बाद डिप्यूटेशन वाले जितने लोग हैं CDA में, इंटीरियर मिनिस्ट्री में, इनको आप बिल्कुल फारिग करें। ये बैठक हमारी जारी रहेगी इंशाल्लाह। हम तीनों लोग जो बैठे हुए हैं, हम आपको लंबा बाई लंबा हर बात से आगाह करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।